very good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. Mr. Sanjay Nigam has already been introduced by our gracious host. He's, of course, the founder of Fashion Entrepreneurs Fund and the creator and producer of Pitch to Get Rich. Pitch to Get Rich, just to give you a sense, is streaming on Jio Hotstar. It is the only televised fashion fund in the country. I think he deserves a big round of applause for being such a huge disruptor in this space. So Sanjay, let's talk about creative capital and creative business. What does all of that mean in the Indian context today, given the fact that you're a disruptor? I think we're going to watch that trailer of the show. Ji? I mean, that can give all the answers. Absolutely. India's creativity has never lacked talent, and what you have done really is gone to the length and breadth of the country and found the right talent to be a part of this show. And it's very heartening for somebody from the fashion world to see that only the top 12 are not being spoken about, and many, many, many more designers are being spoken about, one of which is sitting right there in the front row in the audience. See, India में creativity का problem कभी भी नहीं था. जी. Problem है system की और funding की. बगैर fund के creativity जी नहीं सकती. जैसे वो शाहरुख खान ने बोला है ना कि गुर्बत में ज्ञान नहीं दिया जाता. Similar वही, अगर आप पर पैसे नहीं है, कितनी भी creativity हो, आप scale नहीं कर सकते. So we need a system, scalability, creativity and funding all together. आपने जब इसका conceptualize किया था, were you nervous? Because you are a rank outsider who has gone on to become a godfather in this industry. And nobody saw this coming, honestly. Yet I'm outsider, I believe. No, you're not anymore. See, why outsider? Because I don't bring creativity. I bring funding and money. Hanji. And I'm utilizing that creativity to build into national capital. So I'm good at my economical zone, but not in fashion field. So for them, yet I'm outsider. I'm trying hard to convert them in my, aura and my clan. और संजय जी, आपने एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम लॉन्च कर दिया है. फैशन के लिए फैशन वीक्स लगते हैं. आपने फैशन एंटरप्रेन्योर्स फंड का इंडिया अटेलियर वीक लॉन्च कर दिया है. उसके लिए अवार्ड्स लगते हैं. आपने फैशन एंटरप्रेन्योर्स फंड ग्लोबल फैशन अवार्ड्स भी अनाउंस कर दिया है. आपने फैशन को टीवी पे डाल दिया है, OTT प्लेटफॉर्म पर विद पिच टू गेट रिच. एंड नॉट जस्ट दैट, टू टेक केयर ऑफ बिजनेस आपने MBOs का अनाउंसमेंट कर दिया है, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स. ये जो 360 डिग्री जो आपने फैशन को हर तरफ से जो घेर लिया है ना, it is a very unique concept. And honestly, where did this passion come from? सी आप सब लोग देखिए, बहुत सारे फैशन वीक, फैशन शोज होते हैं हर जगह पे, बट आज तक किसी ने ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखी जहाँ पे वो इकोनॉमिकल एंगल पे होता हो. आई मीन एक फैशन शो हो रहा है जहाँ पे ऑडियंस करण जौहर आ गए. Karan Johar agrees. हाँ, चलाइए. Business news. Indian fashion industry is set to explode to a zoldar 7.5 lakh crore rupees by 2026. Wow. तो फिर fashion businesses में invest करना चाहिए, right? Right. जहाँ fashion मिलता है finance से और game है बड़े investments का. Welcome to Pitch to Get Rich. 30 करोड़ का fashion entrepreneur fund. Pitches, big mothers, boardroom access और negotiations का खेल. किस कंपनी को मिलेगा कितना इन्वेस्टमेंट, ये डिसाइड करेंगे फैशन एंटरप्रेन्योर फंड के एडवाइजर. We call them angels. Let the pitch begin. Welcome to the future of fashion. Teenage women's and men's wear uses hand-lock printing. Our news is more than just a business. It's an emotion. Diemodot is a homegrown, rich to luxury footwear label, but it is not just a piece of rock, but it's a piece of intellectual. Rich to get rich में कुछ भी हो सकता है. ये कलेक्शन क्या है? आपकी Pinterest कभी जाती नहीं होगी. You're very mistaken. Pinterest वाले बात बोल रहे हैं. अब तुम मत बोल दो.
आप ये हर ट्राउजर का फॉल अच्छा नहीं है, इस नंबर से तो मैं बजट स्पॉट कर लूँगा। ये कुछ भी ना मैच नहीं होता है। थोड़ी सोच फॉल ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी जीन्स की तरह आप स्ट्रेच नहीं कर रहे। You look like a nice sexy guy. I'm surprised that sustainable fashion can be high fashion. Lovely, lovely. ठीक है, मत दिखाइए, बाकी लोग जाके टीवी पे देख लें। जियो हॉटस्टार, आप बता रहे थे पैशन कहाँ से आया ये सब इतना बेहेमौत क्रिएट करते हुए? तुम आपको लाइट लाइमलाइट, हाँ जी। सो हम आपको मेंशन ही कर रहे थे कि बहुत सारे फैशन वीक हैं, शोज़ होते हैं, बहुत कुछ होता है, बट कभी भी कुछ भी कहीं पे आपको वो नहीं देखेगा जहाँ पे उसको कन्वर्ट करते हैं इकोनॉमी में। ट्रू। तो एक शो हो रहा है जहाँ पे आपको ऑडियंस मिलेगी, क्रिएटर मिलेंगे, इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, बट आपको लोग नहीं मिलेंगे जो उस फैशन को खरीद रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है और इकोनॉमी नहीं है तो कोई भी फैशन सस्टेन नहीं कर सकता। आप कितने फैशन वीक कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट ये था इसको कन्वर्ट करना इकोनॉमी में, और इससे नेशन और हमारे कारीगर डेवलप होंगे तो इंडिया डेवलप होगा। ऑफ कोर्स। तो सिंपल थॉट ये था, इस गैप को फिल करना था। जी। और नर्वस तो आज भी हैं क्योंकि आगे बहुत काम करना है अभी, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। इट्स गुड टू बी अ लिटिल नर्वस। ये कोई एक तो किसी बहुत ही मशहूर स्पोर्ट्समैन ने कहा है, इट कीप्स योर zeal going if you're a little nervous about it. Absolutely, I mean, yes. And आप कहते हो कि India doesn't need more fashion weeks. It needs more fashion businesses. We've heard that time and again from you. Why? I mean, again, it's very simple. ऐसा ना रुकावटें बहुत आती हैं हमारी लाइफ में। And यही ऑब्स्टिकल को आप पार करके आगे आ गए हो। सी फैशन वीक या फैशन शोज या सी, पहली बात तो फैशन इज़ नॉट जस्ट अ ग्लैमर थिंग, इट्स अ सीरियस बिजनेस। तो उसको बिजनेस जैसे ट्रीट करने के लिए बहुत ज़रूरत है कि हम लोगों जैसे और चीज़ें हों। आप एफ में देखिए हम लोगों ने क्या किया, वी इन्वेस्ट, उसके बाद हम अपने शो पे लोगों को ला के उनको प्रमोट करते हैं, उनको इस्टेब्लिश करते हैं, फिर हमारे अपने स्टोर्स पे वो स्केल कर सकते हैं। सो इट्स कंप्लीट इकोसिस्टम। बाकी आप टेक में देखें, मेडिसिन में देखें, एग्रीकल्चर में देखें, हर जगह इकोसिस्टम है। फैशन में था ही नहीं कभी भी। कब तक ग्लैमर बना के इसको हम चलाते रहेंगे? स्केल करने के बाद जो टाइम आ गया है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक मोर serious business effort to develop fashion and Indian fashion. And you know, I was thinking about it the other day. When you go for a fashion week or do one fashion show, there are 350 people sitting in the audience and 350 people watching it. The same 350 are everywhere to be seen. But it's not reaching the millions. उनमें से खरीद कौन रहा है? Exactly. Buyers होते हैं institutional काफ़ी कुछ, थोड़े बहुत. Media होती है, and the regular same 350 people faces are being seen. But for it to reach the masses, one needed a platform like what you have created. I mean, Mariam is here. You can ask anybody. आपने भी शो देखा है। ये ऐसा नहीं कि ये लोग वहाँ पे दिख रहे हो, ये स्टैब्लिश हो रहा है एज ए मरियम, बट इनका ब्रांड जो है बनाना लैब, वो स्टैब्लिश हो रहा है। एंड आई एम श्योर अगर इनके पेज पे 1000 व्यूज़ आते होंगे तो आज 20,000 व्यूज़ आ रहे होंगे। कल एक लोग शॉप करता होगा तो आज 20 लोग शॉप कर रहे होंगे। दिस इज़ व्हाट वी डूइंग, generating the business and scalability. What you said was very powerful because all of a sudden, 1 out of 5 people know what a Banana Labs is. 1 out of 5 people now know what a Banana Club is or a Stylox is or all the other brands that you had. And honestly, when you were getting into this, were there any obstacles? ऐसा लग रहा था कि people may not support you, it may or may not work out, it may or may not fail. फेल तो होना ही नहीं था, ये तो थॉट था ही नहीं जी। क्योंकि आइडिया अच्छा है, नोबल है, और बिल गेट्स ने बोला है आप जो भी काम करो जिसमें दूसरों का फ़ायदा हो उसमें आपको सक्सेस हमेशा मिलेगी। ऑब्स्टिकल बहुत हैं, आज भी हैं, क्योंकि पर्टिकुलर फिटर्निटी है फैशन की इंडिया में। वो 20-25 लोग, 20-25 डिज़ाइनर जिनको लगता है ना उनकी वो बकौती है तो वो किसी और को आने नहीं देना चाहते। स्पेशली जो नए लोग आ रहे हैं उनको कहीं स्कोप नहीं मिलता, उनको कोई स्टैंड नहीं करने देता, तो बहुत गेट कीपर्स हैं। आवर थॉट वाज वेरी सिंपल, डेवलप द इकोनॉमी एंड गेट कीपर को साइड करना है। तो कुछ लोगों को फ़र्क शायद पड़ता है कि ये कौन है, क्या लोग हैं, क्या कर रहे हैं, बट हमारे देश को इससे फ़र्क पड़ता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो देश के साथ चलते हैं ना, वो 25 लोग वाले में क्यों सोचना हमको। तो आपको क्या लगता है, what is the kind of opportunity that exists in the market outside of the 10 renowned names that we see each and every fashion week? If you notice fashion week, मान लो एवरेज वही 10 नाम आपको दिखाई देंगे हर couture week में या fashion week में.
इसके आगे जो जितने ब्रांड्स है उसमें कितना स्कोप है? बिकॉज यू टेकन अ लीप ऑफ फेथ. आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं. जी. रे रैबिट, आई थिंक देश का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड आज की डेट में. वो किसी फैशन वीक में नहीं दिखेगा आपको, वो किसी कुनबे में नहीं दिखाई देगा आपको. दूसरा, स्निच की बात करें, कितने स्टोर्स हैं. ऐसे ही अगर हम अपने बात करें, हमारे सिस्टम में एक बनाना लैब है, उनका सेल आज की डेट में आई थिंक एवरेज 20 से 25 करोड़ पर मंथ है. आप बताइए ऐसा कौन सा डिज़ाइनर है, एक दो को छोड़ दें, जो सब जगह दिखाई पड़ते हैं, बड़े पॉपुलर हैं, मीडिया उनके बारे में लिखती है, कभी किसी ने उनकी बैलेंस शीट चेक की है? नहीं है वो. तो असली धंधा तो बिजनेस तो डेवलप होता है बैलेंस शीट से, वो होनी ज़रूरी है, ना कि शो ऑफ. इसका मतलब आप क्रिएटिव इकोनॉमी डेवलप कर रहे हो इंडिया में, एंड यू हैव रिकग्नाइज्ड दैट देयर इज अ पावर टू दैट क्रिएटिव इकोनॉमी, एंड व्हाटएवर दैट यू आर डूइंग इज बेसिकली अ व्हीकल टू रीच दैट overall goal of the creative economy. Am I right in my assessment? Absolutely. See, our goal is very simple. हाँ जी. लोकल को ग्लोबल ले जाना है, अपने न्यू कमर्स को, यंग इंडिया को डेवलप करना है, भारत को इतना फैशनेबल बनाना है कि लोग अब मिलान की बात ना करें, पेरिस की बात ना करें, इटली की बात ना करें, इंडिया की बात करें. और यंग इंडिया में इतना पोटेंशियल है, उनको सिर्फ नर्चर करने की ज़रूरत है. तो हम इन्वेस्ट करते हैं, मेंटोर करते हैं, डेवलप करते हैं, स्केल करते हैं. अगले 5 साल में वी लुकिंग अराउंड 1000 ऑफ दी फाउंडर्स जो हम इन्वेस्ट करें, डेवलप करें, 1 करोड़ के आसपास जॉब डेवलप करें और इसको स्केल करें ग्लोबल लेवल पे. I always talk about economy and business. And was it easy to get the investors on board? You have very, very big names backing you. You've got Akshay Kumar, you've got Golubhai Badalia, you've got Naveen Jindal, you've got Vajesh Pathak, you've got Ravi Jaipuria. I mean, the list is endless. How did you manage to show them the creative potential and the financial ROI in a fund like that? अगर आप एक वीडियो यूट्यूब पे है हमारे कॉन्फ्रेंस का, अक्षय कुमार का, जिसमें बोलते हैं कि पूरा फिल्म जो बिज़नेस है इंडिया का, साउथ बॉलीवुड सब मिला के, वो है 15,000 करोड़ का. फैशन का बिज़नेस है 90,000 करोड़ का. तो ये सारे बिजनेसमैन लोग हैं, इनको समझाना बहुत आसान था कि कितना बड़ा बिजनेस है ये, और मनी मेक्स मनी, वेरी सिंपल. तो ये बहुत ईजी था. समझाना मुश्किल उन लोगों का था जिन्होंने वो स्केल देखा नहीं है. तो इस शो ने वो स्केल दिखा दिया और ये मूवमेंट बन गया. आज हर किसी को पता है कि पिच टू गेट रिच क्या है, इस शो से क्या होने वाला है, इसका भविष्य क्या है. तो नाउ वी एट राइट पाथ एंड वी आर गोइंग टू स्केल इट. And अभी आपका second season होगा, third season होगा, many more seasons will come, and hopefully we will see a lot of names that we never knew about earlier. Case in point, I keep saying Banana Lab because Mariam is sitting right here. I didn't know that brand existed until I watched it, and I'm a part of the fashion fraternity. अच्छा, अब आप देखिए, आप तो सारे फैशन के लोगों देखते हो. आप जो स्टोरी है मरियम की, बनाना क्लब की, बनाना लैब की, या हमारे और भी ब्रांड की, इट्स ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स हार्ट टचिंग, इट्स सोलफुल. अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद लोगों को पता नहीं होता. बिल्कुल नहीं पता होता. और फिर हम वहीं घूमते रहते हो, बोलते कुछ नया नहीं आ रहा है. ये नए भी हैं, मॉडर्न भी हैं, येट दे यूजिंग ब्लॉक प्रिंटिंग सिंस लाइक फ्रॉम दी 10 डिकेड्स. तो जो हेरिटेज को फॉलो कर रहा है और जो नया चीज़ें भी लेके आ रहा है, हम सबकी ड्यूटी हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. And by supporting brands like that, there is a lot of reverse migration that you are promoting, because there are so many artisans and weavers in this country whose knowledge is passed down to them from years immemorial, and to preserve them, they require a livelihood. Only when you have these kind of fashion labels and fashion brands doing well and scaling, that is when you can employ those artisans as well. This is a very big point in sustainability that you're driving home, Sanjay. सी सस्टेनेबिलिटी सिर्फ फैब्रिक नहीं है. Exactly. सस्टेनेबिलिटी ये है कि आपका ब्रांड है जी. आपका, एक किसी ने आपके यहाँ से परचेज किया जी. और वो बार बार आता है, उसके साथ 4 लोग लेके और आता है. तो कस्टमर रिटर्नशिप जब बढ़ती है, रिटर्नशिप बढ़ती है, उसको मानते हैं वो सस्टेनेबिलिटी है. सस्टेनेबिलिटी इज ऑलवेज इकोनॉमिक्स, नॉट द फैब्रिक. सो जिस तरीके से हम लोग स्केल कर रहे हैं, हमारे फाउंडर स्केल कर रहे हैं, ये सस्टेनेबिलिटी तो बढ़नी है. मतलब अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपके प्राइस अच्छे हैं और कस्टमर रिपीट हो रहा है, तो इट्स लाइक यू हैव प्रूवन. I don't think you realize this, but you are employing so many livelihoods because of this vehicle that you have, Sanjay, because it has a ripple effect on the rest of the nation, of the karigars who have been employed by Not me, these brands. they are doing it. No, absolutely, absolutely. The entire initiative.
What is the kind of support you would ask from the government today? Or do you think the policies, the way they are, you are happy with them? See, government is doing great. After this leadership of श्री नरेंद्र मोदी जी, everything is changing. Yes. ये लोग बहुत बात करते हैं, बहुत डेवलप कर रहे हैं, स्टार्टअप को, फैब्रिक को, इंडियन हेरिटेज को, सब कुछ हो रहा है. बट शायद इसको थोड़ा और इजी बनाना चाहिए हम लोगों को. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट दिस समबडी इन खादी. तो खादी का ना एक बहुत बड़ा बजट है प्रमोशन के लिए और खादी को डेवलप करने के लिए, येट वो डेवलपमेंट नहीं होता. तो आई गिवन वन सिंपल सोल्यूशन कि आप हमारे 10 फाउंडर को खादी दे दीजिए, वो डिज़ाइन करेंगे और वो जब डिज़ाइन करेंगे सारे लोग पहनेंगे और वो टीवी दिखाई पड़ेगा. जिस दिन आपके सेलिब्रिटीज़ वर्ल्ड वाइड और इंडियन खादी पहन के रेड कार्पेट पे जाने लगे, हर एक आदमी खादी पहनने लगेगा. तो कैसे प्रमोट करना, वो थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा. एंड विल बी देयर. Any suggestions, solutions that you can just put to the fore right now in the open? And obviously, I'm pretty sure at the back end, आप काम कर ही रहे हो इसके policy level. समझना है कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जानने में. देखो हाथ ऊपर तो हो गए, कितने सारे हाथ ऊपर हो गए. 2-3 वहाँ पीछे सो रहे हैं बस. जी, so नहीं, I'm pretty sure at the back end, knowing the person that you are working closely with the policymakers to make that particular change. What is still that one impediment that India will overcome, which can make Khadi global? Because if you notice, many months ago, Prime Minister Narendra Modi had given a clarion call for Khadi in India. सी, जब तक हम अपने आप को या अपनी चीज़ों को पिछड़ा हुआ समझेंगे, फिर एक माइंडसेट होता है, इस इमोशनल माइंडसेट कि इसको हमको पुश करके आगे बढ़ाना है. बट अगर हम ये देखें कि हमारा हेरिटेज, हमारी आर्ट, हमारा खादी, हमारा देश ऑलरेडी बहुत आगे है, फिर वो इमोशनल पुश ख़त्म हो जाएगा. हम फ्रंट फुट के हिलने लगेंगे. हमको ये बोलना है कि हम हैं, हमको ये नहीं करने की जरूरत नहीं कि इसको प्रमोट करो. वी नीड टू टॉक अ डिफरेंट लैंग्वेज, दैट वी आर अहेड ऑफ टाइम्स. हमारा कल्चर दुनिया में सबसे पुराना है, हमको प्रिजर्व करना पड़ेगा. ये हमारे देश के, हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उस पर काम करें. कोई सरकार थोड़े बोलेगी आके, एक आम आदमी, हम सबकी जिम्मेदारी है. वो जिम्मेदारी हम लोग निभा लें, हमारा देश निकल जाएगा आगे. Very well said. That really deserves a round of applause. That really is a very noble thought indeed. I'm just going to shift focus back to the Fashion Entrepreneurs Fund India Atelier Week, which is also being launched. And that is also required because there's a certain media buyer ecosystem which fashion really caters to. And that's the way fashion is conducted all over the world. You have added a layer where you have televised it. You have added a layer where you've got MBOs rolling out. So you are looking at it in a 360-degree perspective. What can we expect? That one thing which is different in the Fashion Entrepreneurs Fund India Atelier Week from everything else that we're seeing today? See, we're making it very simple. हाँ जी. As a business model. Suppose आपका शो है, as a designer we have selected somebody. तो उनके शो में जो लोग बैठे होंगे सिर्फ ऑडियंस नहीं होगी, वो एक्चुअल बायर होंगे और इन्वेस्टर होंगे. अभी रनवे ना पिच रूम होगा हमारा. वहाँ पे आप जब शो करेंगे तो आपको दिखेंगे वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर जो शो के बाद आपके स्टॉल पे जाएंगे, आपका फैब्रिक देखेंगे, आपका डिज़ाइन देखेंगे और वो डिसाइड करेंगे हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है. तो सिंपली जो कंप्लीट फैशन वीक हमारा इज़ ऑल अबाउट द इन्वेस्टिंग, बिकॉज क्रिएटिविटी एंड द आर्ट नीड्स लॉट ऑफ मनी. विदाउट मनी देयर इज़ नथिंग. You are very well hit the nail on its head because in fashion weeks you don't really see investors sitting there. And like he rightly mentioned, every runway is going to be a business pitch when he launches FEF India Atelier Week. I mean, it's mandatory because now it's time to scale everything. कब तक हम बोलेंगे कि now we're going to buy Dior or Prada or Gucci? It's our turn. It's our India, our nation. Absolutely. And दूसरा क्यों हम किसी पे डिपेंडेंट होंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए? हम सबसे बड़े कंज्यूमर, हम कंज्यूम कर लेंगे, बनाएंगे भी, कंज्यूम भी कर लेंगे. That's a very, very noble thought. And, you know, for many, many years, fashion has always felt a little classiest, elitist. थोड़ा उसका perception है, चाहे न भी हो तो भी perception बन चुका है वैसा. How are you making the business of fashion more participative and more inclusive in the real sense of the term inclusive? See, ये perception ना आपको पता है जब हमने शो बनाया तो हर आदमी का कहना ये था कि ये शो तो बहुत नीश है, फैशन है, इसको कोई नहीं देखेगा या बहुत कम लोग देखेंगे. बट हमारा थॉट बहुत अलग था इसमें. अगर हम कोई शो बनाते, आर्ट, साइंस
मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, तो शायद कम लोग देखते हैं क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। फैशन चाहे आपके घर का हाउस हेल्प हो या हम और आप हो या सारे लोग हो, हम सबको फैशन पता है, जिसका जो सही लगता है वो करता है। तो ये शब्द सबसे जुड़ा हुआ है, तो इस लाइक इस फॉर पैन इंडिया। तो मेकिंग समथिंग विच इज़ फॉर ईच एंड एवरी इंडियन विच इज़ आई मीन इट्स अ ग्रेट थिंग। इसमें ये सोचना कि सिर्फ ग्लैमर ही फैशन है या फैशन ही ग्लैमर है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर एक धोती पहनते हो या आप पजामा पहनते हो या आप चप्पल पहनते हो, आप अपनी समझ से फैशनेबल ही हो। There are international brands who have taken the Kolhapuri chappal and made it into what it is. तो what जो आप बोल रहे हो, it is fashion. क्योंकि हमने केयर नहीं की। क्योंकि हमने केयर नहीं किया है. Now we're going to care. ग्लैमर की आप बात कर रहे थे. It's very intriguing. You have used glamour as an enabler. There were a lot of naysayers when you were launching Pitch to Get Rich. The industry gossip said, what is Bollywood going to do in fashion? नहीं, I want to mention few things. Sorry. I want to mention. So क्या होता है? I'm sure आप लोगों ने बहुत लोगों ने शो नहीं देखा होगा. तो बहुत से मीडिया, बहुत सारे क्रिटिक्स ने, ठीक है, I mean उनका थॉट है. कई लोगों ने तो ऐसे शो का एक एपिसोड देखा, लिख दिया शार्क टैंक विदाउट टीथ. तो But the teeth that doesn't bite. Yeah, I have taken that way. But see, critics अच्छी बात है करना, बट हमको लगता है क्रिटिक्स तब करो जब सब कुछ समझ लो. किसी ने लिखा सस्ता शार्क टैंक, तो हमने लिखा हाँ 100 करोड़ का बहुत सस्ता है. बहुत सस्ता है. और you know, honestly, the show started with a corpus of 30 crore rupees, and eventually you were brought in to make a decision कि 10 crore और डाल दो, because you know the things were going so great for the participants in the show. So अगर लोगों को 40 करोड़ सस्ते लगते तो now I don't know what to say, but उनको बहुत पैसे मिलते होंगे. no, but having said that, I'm coming back to the glamour part. A lot of naysayers had pushback that why is Bollywood a part of something so creative and design-led and fashion, right? Fashion becomes a very serious, esoteric concept for them. Don't you think Bollywood today, or cricket for that matter, or anything that's very popular, becomes an enabler, becomes a means to an overall end to make the fashionistas and the designers very popular? सी कोई भी चीज़ हमारे देश में अगर उसमें क्रिकेट और बॉलीवुड नहीं है ना, वो बेकार है. फैक्ट है, ये माइंडसेट हम सब लोगों का. Eyeballs are everything. सो हम लोगों ने क्या किया, हमारा कोर जो फैशन था, थॉट इन्वेस्टमेंट था, बट हमने सोचा इसको ऐसा बनाओ कि एक आम आदमी देखे, हर कोई देखे. इसलिए हमने इतना बॉलीवुड ऐड किया. बट अगर आप शो देखोगे, आप बॉलीवुड भूल जाओगे, आप प्रोसेस में चले जाओगे, आप लर्निंग में जाओगे. जी. तो भी सिंपली जैसे बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते थे तो हमने कॉमिक्स बना दी. जी. राइट, कॉमिक्स के बाद हमने छोटे छोटे टीवी शोज बना दिए जस्ट टू लेट देम लर्न. Yes. तो इजी वे है, और हमको लगता है ये सब चीज़ों को बहुत सीरियस नहीं करना चाहिए, इंटरटेनिंग करना चाहिए. तो आप इंटरटेन होते होते लर्न कर रहे हो, आप समझ रहे हो सिस्टम क्या है. And that is why the term Yeah. infotainment exists. इंफोटेनमेंट. सो दिस इज व्हाई बॉलीवुड एंड क्रिकेट. No, that's very, very interesting. Now, what happens usually for most design houses in this country, whether it is art, whether it is fashion? You will have that one flagship store that will require very high capital, and it's a capital-intensive business if you want to have more single-brand outlets across the country. Not everybody is funded, and not everybody has that bandwidth. From internal accruals, you can't come up with 5 stores across the nation. What you have done is started the MBO, Made as Me. Let's talk a little more about the philosophy behind that. सी इज माई 1 minute pitch. सो बहुत सिंपल है. To अगेन get rich? टू मोर रिच. तो इट्स सिंपल. एफईएफ इन्वेस्ट करता है, पीटीजीआर डेवलप करता है, और मेड एज मी उसको स्केल करता है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू शुड हैव दैट गॉट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अस, Yeah. बट अगर आपका ब्रांड अच्छा है, स्केलेबल है, तो हमारे स्टोर में आपको जगह मिलेगी. आपका ब्रांड स्केलेबल है और आप लाइक करते हो प्रमोशन मार्केटिंग, तो हमारे शो पे आपको जगह मिलेगी. और आप दोनों के लिए आपको लगता नहीं इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा. तो इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट, मेंटरशिप, प्रमोशन एंड दी सेल. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. सी हम लोगों का टारगेट है Tier 2, Tier 3 सिटीज़. मेट्रोज टारगेट नहीं है हमारा, क्योंकि आज के इंस्पिरेशन जो है ना वो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में ज़्यादा हैं. और हर आदमी को फैशनेबल बनना है, अभी सबको शौक है. तो क्यों ना उन लोगों के लिए हम काम करें जो एक्चुअल इंडिया है हमारा. And you're honestly taking these very design-forward labels to cities that do not today have an access to those kind of labels also, right?
And for the designer, it works out very well because उनके लिए उतना investment नहीं है. The input cost is going down because they just have to take a rack in the MBO. आपको ना एक स्टोरी सुनाते हैं. हमारा पहला जी. स्टोर लॉन्च हुआ 14th को रायपुर में. तो रायपुर सोच के जितने लोग लगता है यहाँ पे तो डिज़ाइनर कपड़े पहने ही नहीं जाएंगे. तो हमारी टीम ने क्या किया, स्टोर में जो सबसे आगे का रैक लगाया वो बहुत होता ना रेगुलर सलवार कमीज और दोज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड आई वेंट देयर दैट आफ्टरनून और हमने देखा सारा एंड आई चेंज एवरीथिंग. मरियम सबसे पहला पीस हमने आपका लगाया वहाँ पे और पहला कस्टमर आके उसने वही पीस उठाया, उसी को ख़रीदा. क्योंकि सबको ना डिज़ाइनर चीज़ें चाहिए, रेगुलर नहीं चाहिए. तो दिस इज़ वन स्टोरी. सिमिलरली हर कोई कुछ नया कुछ अलग करना चाहता है. सब में इंस्पिरेशन है. हम लोग उसको फ्यूल देने की ज़रूरत है. देश बदल रहा है. बिल्कुल बदल रहा है. और what is most interesting about Made as Me and the portfolio companies of Fashion Entrepreneurs Fund is that you've taken aspirational luxury, bridge to luxury, luxury, aspirational mid-market, and every consumer, you know, is getting targeted through different portfolio of brands that you are housing at Made as Me. I Doesn't think, that make a difference? Yeah, we have taken that versatile Yes, attitude I noticed that. and it's bridge to luxury, affordable luxury, Yes. yet to ready to wear, और आपने कुछ और भी किया. couture भी है. तो सारी चीज़ें, यही नहीं कि हमारे पास सिर्फ कपड़े हैं, हमारे पास शूज़ हैं, एसेसरीज है, सब कुछ है. आपको जो कुछ चाहिए वो हमारे स्टोर पे आपको मिलेगा. एंड द मेन थिंग इज इट्स इम्पॉर्टेंट टू वर्क A to Z, नॉट द हाफ हाफ. सो आपका जैसा पॉकेट अलाउ करता है, जैसा आपका स्टाइलिंग अलाउ करता है, you can buy anything and everything from my store. No, absolutely. And how do you think the rollout of Made as Me as a multi-brand outlet in this country is going to give a boost to the creative capital of this nation? See, one thing in my system, अगर आप देखें, जैसे हम कहते हैं कि हमारा शो जो है मेक इन इंडिया है. इट्स अ फर्स्ट इंडियन मेड कंटेंट विच इज़ आई मीन रियलिटी शो. हम लोग इसको बाहर लेके जा रहे हैं. अभी तक क्या होता है, आप बाहर के शोज़ देखते हो, मास्टर शेफ, शार्क टैंक, बिग बॉस, सारे बाहर के शोज़ हैं. ये पहला शो है जो आप लाइसेंस देखेंगे बाकी कंट्रीज़ में. सिमिलरली हमने रिलीज़ भी कहाँ किया, जियो, जो इंडियन है. थर्ड, जितने भी लोग हमारे शो में सारे होम ग्रोन इंडियन लेबल है. Absolutely. तो हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत मेंटेन किया कि वी शुड मेंटेन आवर स्टोरी टूवर्ड्स विद द इंडिया. सो ये आप देखोगे, आप सब जगह देखोगे सेम स्टोर भी हमारे आपको वही ब्रांड मिलेंगे जो हमारे अपने हैं. Don't you think India already has every ingredient possible to become a creative powerhouse? The only thing and the missing wheel was a direction to the ecosystem and the push in a 360-degree way, which you are doing today. आई थिंक वी ऑलवेज बीन दैट क्रिएटिव सुपर हाउस. हम लोग हमेशा से पावर हाउस हैं. बस अपने आप को थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था ये सोच के कि चलो कोई और आएगा तुम देख लेंगे या उनको कॉपी कर लेंगे, इनको कॉपी कर लेंगे. बट अभी ऐसा नहीं है. बहुत जागरूकता है लोगों के अंदर. और हमारा काम सिर्फ ये है, वो जो अभी हमारा देश जो अलाइन हो रहा है उसमें फ्यूल डालना और उनको और अलाइन करना कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन खरीदें. अब मैं एक ऑब्जर्वेशन, एक पर्सनल बोलना चाहूँगी. When you are an aspirational consumer, आप डॉल्चे गबाना ऑल्टोमोडा देखोगे, आप शनेल देखोगे, आप डियोर देखोगे, लुई विटॉन, एंड यू नो दैट फॉर द एंड कंज्यूमर इज एब्सोल्यूट एस्पिरेशन. आपके शो के बाद मेरे लिए बनाना लैब्स एस्पिरेशन हो गया है, मेरे लिए टॉकिंग थ्रेड्स एस्पिरेशनल हो गया है, एंड एवरी ब्रांड दैट यू टुक एंड एलिवेटेड टू द नेक्स्ट लेवल हैज़ बिकम एस्पिरेशनल. To me, as an end consumer, that is the biggest gift you could have given our Indian creative ecosystem. Sanjay. थैंक यू सो मच. No, absolutely. He deserves a big round of applause for that. Before we're going to let him go, लोग कह रहे हैं जाओ. नहीं, मैं एक लास्ट सवाल पूछने के बाद, if you had to define creative Bharat in one sentence, how would you define it? इट्स फैशन एंटरप्रेन्योर फंड. Oh, well said. Thank you so much, Sanjay. More power to you. Thank you everyone. Thank you everyone for Thank being you so such a much. gracious audience. Thank you. मुझे किसी ने बेल ही नहीं की.